Hello students. So come to replication part of DNA. It is one of the important process as well as interesting. Okay, what we already know is that DNA replication occurs in a phase of interphase in a cell performing meiosis as well as mitosis. Meiosis, mitosis दोनों के सेल डिवीजन के दरमियान इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है, राइट. मोनैड के डायड बनते हैं. वो टाइम मैंने आपको, राइट, दैट टाइम आई जस्ट ब्रीफ दैट टू स्ट्रैंड्स हेलिकली कॉइल्ड विल सेपरेट, will give you fork and new strands are synthesized. Now we are studying in detail, right? So जब ये fork बन रहा है, okay, previous lecture में हमने eukaryotic DNA has many origin. At origin the enzyme working is endonuclease, cutting the phosphodiester bond between two nucleotides of same strand. DNA will uncoil, okay, then again it will bind up, resealing हो जाएगा. So now the DNA is loosely coiled and now two strands are easily separated. दो स्ट्रैंड सेपरेट करने में आसानी होगी क्योंकि उसका ट्विस्ट जो है वो लूज हो गया, right? Then helicase will move bidirectionally, cutting all the hydrogen bonds. Okay, you get replication bubble, replication fork, and now your microscope is adjusted on the replication fork. Now your microscope is adjusted on the replication fork. अब यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन एक्टिवेशन के बाद होगा. Let's see. In eukaryotes, major DNA, chromosomal DNA, genomic DNA are present in the nucleus. DNA always stays in nucleus. During cell division, for few steps, the nuclear membrane disappears and it is present in cytoplasm. Otherwise, DNA is always there. DNA is always there in nucleoplasm. So, in nucleoplasm, activation of nucleotide is one of the important steps happening. What is that? Activation of nucleotides. Right? अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में है, they will be adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, thymine monophosphate and cytosine monophosphate. These are all monophosphate nucleotides which are not active. Right? Now these nucleotides will react with ATP, one each. It will react with ATP. ATP अपने 2 IP इधर दे देगा and हमको total activated nucleotides मिलेंगे. That will be ATP, GTP, TTP and CTP. Monophosphate will be activated to triphosphate nucleotides and these are activated nucleotides. 4 types of nucleotides are required for DNA replication. So first step of DNA replication is activation of nucleotide. Simultaneously on in eukaryotic cell, many origin cut, DNA uncoil and ultimately we get a replication fork. अब मैं थोड़ा color code use करूंगी. Black color is used for the parental DNA. Parental DNA 2 strand coil हो गए, right? So parental DNA के लिए हम black color use करेंगे. तो ये black color से जो मैंने draw किया है, this one, right? So I'll write down, it is parental DS DNA, parental double stranded DNA. बराबर. ये जो है, this one, it will be again parental single strand of DNA which has opened up because the hydrogen bonds are broken down. Hydrogen bonds are broken down by the enzyme helicase जो replication fork पे ये डायरेक्शन में ऊपर DNA को unzip कर रहा है. Helicase, DNA unwinding protein, right? Then DNA unzipping protein, REP protein. याद आ रहे हैं ना एंजाइम के नाम ध्यान में रखने, बराबर. So it is unzipping and the fork is आगे 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 खुलता जाए.
right? Okay, so this is how new nucleotides are synthesized in late G1. After first checkpoint, सेल ने डिसाइड किया डिवाइड होते हैं, राइट? चेक पॉइंट पे उसने डिवीजन का डिसीजन ले लिया, फिर उसने नए न्यूक्लियोटाइड बनाए, ये न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हुए, तब डीएनए खुल रहा है, हेलिकेज उसको खोलते जा रहा है. यू नो डीएनए के दो स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल हेलिकली कॉइल्ड थे, नाउ दे आर सेपरेटेड बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन. दिस टू डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, तो थोड़ा कुछ हो जाए एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इट विल कॉइल, राइट? तो वो कंडीशन में ये स्ट्रैंड को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे हमने एंजाइम का नाम रखा था, एंड दीज आर कॉल्ड दिस एंजाइम, राइट? दिस विल बी SSB प्रोटीन. इसका नाम हमने क्या बोला था? इट इज SSB प्रोटीन. के सब इसके बाद के एंजाइम का नाम आई यूज ग्रीन कलर्स प्रेफरेबली. हेलिकेज के लिए मैंने रेड यूज कर लिया है, ठीक है? ऑल एंजाइम्स विल कलर बाय ग्रीन, ठीक है, राइट? सो दिस इज हेलिकेज अनवाइंडिंग SSB प्रोटीन is making the two strands stable so that the nucleotides can be checked, complementarity rule is followed and new nucleotides are added. बराबर. अब हमने बोला ATGC पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, इट इज वेरी स्पेसिफिक, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए. जैसे आपके स्पेलिंग में TIP और TOP स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्या बोला मैंने? आप लिखना चाहते हो TIP और आपने लिख दिया TOP, एक अल्फाबेट बदल गया तो आपके स्पेलिंग का, शब्द का अर्थ बदल रहा है. वैसे डीएनए की बात है. ओके, वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ATGC, गलती से A की जगह T ऐड हो गया, T की जगह C ऐड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल जल्दी में गलत हो गया, तो डीएनए की इंफॉर्मेशन एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से पूरी बदल सकती है. जैसे एक अल्फाबेट की वजह से ये दो शब्द का अर्थ बदलेगा, राइट? सो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी हैज टू बी फॉलोड, द एक्यूरेसी हैज टू बी मेंटेन्ड. सो एज टू प्रमोट एक्यूरेसी, DNA replication is always initiated by a small segment of RNA, and that is called RNA primer, right? So ये क्या है? This one, it is RNA primer. It is a small segment, right? 10-14 न्यूक्लियोटाइड्स का ये छोटा सेगमेंट है न्यूक्लियोटाइड का. ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड के टुकड़ा है. तो ये आरएनए का टुकड़ा है, इट्स कॉल्ड आरएनए प्राइमर, राइट? आरएनए प्राइमर इज इनिशियली एडेड at the site of DNA replication, and then deoxyribonucleotides are added. After that, deoxyribonucleotides are added. So initially RNA primer is added. Okay, अब फिर से रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी फॉलो होगा, रूल ऑफ एंटी पैरेलल नेचर फॉलो होगा. अगर डीएनए का ये स्ट्रैंड 3' एंड का है तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर का 5' एंड होगा, 5' एंड होगा. सो दिस इज 3' एंड दिस इज 5' एंड, right? Okay, so these two strands are complementary, anti-parallel, right? और RNA प्राइमर बनाने वाला एंजाइम है, RNA प्राइमर बनाने वाला एंजाइम है, इट्स DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज प्राइमेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज या फिर प्राइमेज. अब देखो, DNA बनाने वाला एंजाइम DNA पॉलीमरेज, RNA प्राइमर बनाने वाला एंजाइम प्राइमेज. तो नाम एंजाइम का काम के अनुसार होगा और अंत में उसके एक सफिक्स लगेगा ASE, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला न्यूक्लिएज, हेलिक्स खोलने वाला हेलिकेज, प्राइमर बनाने वाला प्राइमेज, बराबर? सो दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है? तो इनिशियली आरएनए प्राइमर इज एडेड at 5' end of its own and 3' end of the parental DNA. Parental strand is also called template. Template is the one
who guides the process of DNA replication. Okay, टेम्पलेट डीएनए रेप्लिकेशन गाइड करता है. टेम्पलेट मतलब प्रोसेस को गाइड करने वाला. डीएनए रेप्लिकेशन गाइड करने वाला डीएनए ही है. तो डीएनए जो खुद का कैटलाइजेशन, खुद का रेप्लिकेशन गाइड करता है, ये प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी. डीएनए catalyzing, right? DNA regulating synthesis of DNA. The process is called autocatalytic property. So this autocatalytic property is initiated at its template 3' end और नया स्ट्रैंड जो बन रहा है उसके 5' end पे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा. बराबर. ओके. एक्यूरेसी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ गया. एक्यूरेसी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ गया. अब एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एक 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 करके यहाँ पे आएंगे. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए जो एंजाइम काम करेगा दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए का पॉलीमर बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल कैरी द न्यूक्लियोटाइड, will check the rule of complementarity and new nucleotides are added here. Okay, अब देखो मैं यहाँ पे आपको फिर से न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करके बता रही हूँ. So this is a deoxyribose sugar. इसका ये ऑक्सीजन, राइट, और इसका ये 5' है. देखो इधर इसका 5' है, 5' एंड, और इधर से यही न्यूक्लियोटाइड को हम अगर इधर से देखते हैं, राइट, तो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, दिस विल बी 3' एंड. राइट, ये इसका 5' एंड है, तो ये कार्बन इसका 3' एंड है. Each nucleotide of deoxyribose is polar because the sugar in the nucleotide is polar. शुगर को 5' एंड है, शुगर को 3' एंड है. राइट, तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे ऐड हुआ, इसको हम इधर से देखेंगे विल सी 5' एंड, इधर से देखेंगे विल सी 3' एंड. बराबर. अब ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड है. राइट, सो समझ लो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, राइट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इज एडेनिन. तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा? हियर द न्यूक्लियोटाइड एडेड विल बी थायमीन. तो यहाँ पे थायमीन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ेगा. ओके, अब देखो ये मेरा हाथ है, राइट, ये है इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, ये है टीएमपी, थायमीन मोनोफॉस्फेट. इसने एक आईपी लिया, ये हो गया थायमीन डाइफॉस्फेट. दूसरा ले लिया, ये होगा थायमीन ट्राइफॉस्फेट, और ये आया इधर. ठीक से देखो, ये आया इधर. इसने 2 फॉस्फेट छोड़ दिए. ट्राइफॉस्फेट था ना, उसने 2 फॉस्फेट छोड़ दिए. राइट, अब देखो जब ये ट्राइफॉस्फेट बना तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की. जब ये ट्राइफॉस्फेट बना तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की. राइट, तो ये ट्राइफॉस्फेट वाला एनर्जी रिच केमिकल है. ये एक्टिवेटेड टीटीपी जब यहाँ पे आया, उसने 2 फॉस्फेट छोड़ दिए तो एनर्जी रिलीज होगी. राइट, टीपीपी विल बी कन्वर्टेड टू टीएमपी अगेन. By releasing the energy, this energy is used for DNA replication. Right? So यहाँ पे TPP आया, उसने 2 फॉस्फेट छोड़ दिए. Right? Okay, इसका ओरिएंटेशन देखो. अब यहाँ पे ये एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, because adenine is a nucleotide present on opposite strand. बराबर. रेड न्यू स्ट्रैंड को ब्लैक पेरेंटल स्ट्रैंड अपोजिट स्ट्रैंड है. सो पेरेंटल स्ट्रैंड पे अगर एडेनिन है, पेरेंटल स्ट्रैंड पे अगर एडेनिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड थायमीन होना चाहिए. तो यहाँ पे थायमिडिलिक एसिड, थायमीन मोनोफॉस्फेट जिसने 2 फॉस्फेट छोड़ दिए, राइट, एनर्जी रिलीज की, और ये थायमीन ने अब एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए. इधर का ये जो फॉस्फेट था, राइट, ये जो 5th कार्बन को अटैच हुआ फॉस्फेट है, ये क्या करेगा? आरएनए के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ेगा. राइट, तो देखो नया न्यूक्लियोटाइड विल रिवाइव
Thymine monophosphate, diphosphate, triphosphate. It is activated nucleotide will come here, right? यहाँ पे आने के बाद उसने phosphate छोड़ दिया, right? उसने बॉन्ड बनाया आरएनए प्राइमर के एक एंड को, ये आरएनए प्राइमर के एंड को जुड़ गया. सो सेम स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड को जुड़ना, अब ये एक ही स्ट्रैंड बन रहा है ना रेड कलर का. सो सेम स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड, ये ओल्ड वाला जो ऑलरेडी एडेड है और ये नया वाला जो थायमिन मोनोफॉस्फेट है. ये ओल्ड वाले न्यूक्लियोटाइड को नया थायमिन मोनोफॉस्फेट जुड़ेगा. कौन से बॉन्ड से? विच बॉन्ड विल अटैच न्यू न्यूक्लियोटाइड टू द ओल्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड. अच्छे से सुनो, ये नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है. नए डीएनए स्ट्रैंड का ये पहले से एडेड न्यूक्लियोटाइड है. ये पहले से एडेड न्यूक्लियोटाइड को नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है. तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ सेम स्ट्रैंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट? एंड दिस न्यूक्लियोटाइड will get attached to the other nucleotide, right, which is complementary by hydrogen bond. And you know, adenine, thymine are connected to each other by two hydrogen bonds, right? So see, first RNA primer attached, then one by one nucleotide, monophosphate, diphosphate, triphosphate are coming. By considering the complementary base pair, new nucleotides are added. बराबर. न्यू न्यूक्लियोटाइड once added, it will form phosphodiester bond with the previously added nucleotide and a hydrogen bond with the complementary nitrogen base which is supposed to pair with it. Okay, so nucleotides are added, phosphodiester bond, hydrogen bond, phosphodiester bond, hydrogen bond, phosphodiester bond, hydrogen bond. Like that, the strand will continue to grow. ये देखो, अब मैं न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रही हूँ. बराबर. ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. Two nucleotides of same strand are connected to each other by phosphodiester bond, and two nucleotides of opposite strand are connected to each other by hydrogen bond. Right? So this is how new strand, which I am showing by red color, is added in this direction, जिसका सिंथेसिस खुद के 5' पे शुरू हुआ और खुद के 3' की तरफ वो ग्रो हो रहा है. खुद के 3' की तरफ वो ग्रो हो रहा है. राइट? सो शैल आई से न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन 5:3 डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ. खुद के रेप्लिकेशन के अनुसार ये डीएनए स्ट्रैंड 5:3 डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट, ये डीएनए स्ट्रैंड इस तरह से ग्रो हो रहा है. अगर हम टेम्पलेट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट इट इज ग्रोइंग फ्रॉम 3:5. सो न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इन 5:3 डायरेक्शन. New DNA is synthesized with respect to template, the parental one, the black one, in direction 3:5. See, it is crystal clear. खुद का 5' end grow हो रहा है खुद के 3' end की तरफ. टेम्पलेट का 3' end grow हो रहा है टेम्पलेट के 5' end की तरफ. क्लियर? राइट? तो ये स्ट्रैंड सिंथेसिस शुरू हो गया. अब यहाँ पे एक बात हम ध्यान में रखेंगे, 5:3. कौन सी डायरेक्शन ध्यान में रखेंगे हम? 5:3. Majority of the events in the process of genetics, replication, DNA बनाने की बात हो, RNA बनाने की बात हो, right? डायरेक्शन हमेशा 5:3 रहेगा. डायरेक्शन हमेशा 5:3 रहेगा. Right? So see, new strand is always synthesized in 5:3 direction. ये बात आप ऐसे like जहन में उतार लो. Just keep it in your mind forever. New strands are synthesized with respect to itself in 5:3 direction. Right? New strand synthesized in 5:3. New strand synthesized in 5:3. New strand synthesized in 5:3. Good. Great. बराबर. So नए स्ट्रैंड 5:3 डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं. बराबर. ओके, अब देखो
5:3 डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड ग्रो हो रहा है. ओके, क्यों? इफ यू आस्क मी व्हाई, then in that situation the new strand which is synthesized in 5:3 direction is synthesized in that direction because the DNA polymerase enzyme is synthesized, is working in 5:3 direction. DNA polymerase जो एंजाइम है DNA बनाने के लिए, वो 5:3 डायरेक्शन में ही काम कर सकता है, वो 3:5 डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता. Right? Okay, that's why the DNA replication started and this strand is continuously growing towards the fork. बराबर. अब एक टेम्पलेट पे यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन शुरू हो चुका, इस पे अभी DNA रेप्लिकेशन नहीं शुरू हुआ. क्यों? अभी ये कंसिडरेबल ओपन नहीं हुआ. पहले 4 न्यूक्लियोटाइड, फिर 10 न्यूक्लियोटाइड. आरएनए प्राइमर तो जुड़े. ओके, पहला प्रोसेस आरएनए प्राइमर का है जो अराउंड 14 न्यूक्लियोटाइड का होगा. बराबर. तो यहाँ पे कम से कम 14 से थोड़े ज्यादा तो खुले. जब ये खुलेगा तो उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये अगर टेम्पलेट का 5' एंड है तो नए स्ट्रैंड का यहाँ पे होगा 3' एंड. राइट. सो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होके ये डायरेक्शन में हो नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए obviously DNA polymerase enzyme is required and DNA polymerase enzyme cannot work in its 3:5 direction. खुद के 3:5 डायरेक्शन में DNA polymerase काम नहीं करता, तो ये एंड पे DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू नहीं हो सकती. So I am erasing it. This is 3' end. बराबर. अगर ये 5' है तो यहाँ पे बनने वाले, फ्यूचर में बनने वाले डीएनए का ये 3' एंड होगा. राइट. तो इसका ये इधर का एंड ऑब्वियसली 5' एंड होगा. Isn't it? तो इसका ये एंड यहाँ पे 5' एंड होगा. ओके, तो अगर यहाँ पे एंड 5' है तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रोसेस शुरू करेगा ऑब्वियसली बाय एडिंग आरएनए प्राइमर. तो यहाँ पे फिर से आरएनए प्राइमर जुड़ जाएगा. इसका 5' एंड इधर है, उसका 3' एंड इधर है. आरएनए प्राइमर ऐड होने के बाद एक्यूरेसी प्रमोट होगी. राइट. एंड फिर यहाँ पे 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड फिर से ऐड होना शुरू हो जाएंगे. तो ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर का ऑक्सीजन, ये है बेस. राइट. और ये है इसका 5 कार्बन, ये है इसका 1 कार्बन, यहाँ पे है नाइट्रोजन बेस. बराबर. अब ये नाइट्रोजन बेस ऑब्वियसली इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा. टेम्पलेट के पास अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइटोसिन जीसी पेयरिंग. राइट. तो वो कंडीशन में क्या होगा? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट विल कम हियर. राइट. 2 आईपी छूट दिए जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी. दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. राइट. एंड नाउ दिस 5' राइट, जो फॉस्फेट को जुड़ा है H3PO4 को, उसके 2 हाइड्रोजन 2 लोकेशन निकल जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे. और ये आरएनए प्राइमर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा. और इधर जो नाइट्रोजन बेस है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा. गेटिंग मी? राइट. सो दिस इज हाउ 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1. Okay. Monophosphate, diphosphate, triphosphate activated will come here. 2 phosphate released. Formation of hydrogen bond with the complementary nitrogen base and phosphodiester bond with the next nucleotide. Right? इस प्रकार से यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे या नया न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा और इसका 5' कार्बन ओके नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड या प्रीवियसली एडेड न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. राइट. तो ऐसे ये जुड़ते जाएंगे. राइट.
सो दिस वन, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड और ये डार्क वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. रिमेंबर द रूल विच वी हैव डिस्कस्ड. In one strand, two nucleotides are connected to each other by phosphodiester bond. In opposite strand, complementary strand, two complementary nucleotides are connected to each other by hydrogen. Right? Okay. So this is how this strand will continue to grow. Right? This strand will continue to grow in this direction. Direction समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे RNA प्राइमर जुड़ गया तो ये DNA इस तरह से ग्रो हो रहा है. So shall I make a statement like this? This strand whose synthesis started first. The strand whose synthesis started first. ये strand का replication पहले शुरू होता है, ये strand का बाद में होता है. Okay, दूसरी भाषा में template जिसका 3' end open है, template DNA जिसका 3' end open है, 3' end पे DNA replication पहले शुरू होगा. पहले शुरू होगा तो उसको बोलेंगे लीडिंग. पहले शुरू होगा तो उसको बोलेंगे लीडिंग. राइट. सो दिस इज लीडिंग टेम्पलेट. द वन स्ट्रैंड ऑफ DNA, न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA whose synthesis is initiated first is called leading strand. Leading strand synthesis starts first at its 5' end. It grows towards 3' end. With respect to template, it is growing in 5:3 towards the replication fork. With respect to template, it is growing towards the replication fork, right? So I can say leading strand of DNA is synthesized in 5:3 direction towards the fork, right? चलो, ये strand का synthesis बाद में शुरू हुआ. The one whose synthesis starts bit late is called lagging strand. जो स्ट्रैंड का सिंथेसिस थोड़ा लेट शुरू होगा इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड. राइट. लैगिंग स्ट्रैंड इज आल्सो ग्रोइंग इन 5:3 डायरेक्शन. लैगिंग स्ट्रैंड इज आल्सो ग्रोइंग इन 5:3 डायरेक्शन बट इट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम द फोक. देखो एरो के हेड को. लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन 5:3 डायरेक्शन टुवर्ड्स द फोक. लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन 5:3 डायरेक्शन away from the fork, but both are synthesized in 5:3. New DNA strand is synthesized in 5:3 with respect to itself. खुद के अनुसार इसका replication new strand के अनुसार replication 5:3 डायरेक्शन में चलेगा हमेशा. With respect to template, black वाला देखो 3:5. यहाँ पे भी देखो ये 3' end, मतलब ये 3' end. It is growing 3:5. Write down star point. New biomolecules like DNA, RNA, लिख लो. RNA भी ऐसा ही बनता है 5:3. लिख लो. New biomolecules like DNA, RNA are synthesized in 5:3 direction with respect to itself always. Are synthesized in 5:3 direction with respect to itself always. दूसरा स्टेटमेंट लिखो. New biomolecules like DNA, RNA are synthesized in 3:5 direction with respect to template. New biomolecules like DNA, RNA are synthesized in 3:5 direction with respect to template always. With respect to template always. Clear with the two things? ये कौन सी भी कंडीशन में डायरेक्शन नहीं बदलेगा. राइट. ओके, चलो अब आगे चलते हैं. देखो हेलिकेज ने आगे वाले डीएनए को खोल दिया. राइट. तो समझ लो, आई एम जस्ट मॉडिफाइंग अ डायग्राम. राइट. ये डीएनए है
जो लूजली कॉइल्ड है इस प्रकार से, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इंटैक्ट है। तो ये जो हेलिकेज है, ये हेलिकेज अब यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि हेलिकेज को डीएनए को अनजिप करते 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 पूरा ऊपर के एंड तक पहुंचना है, बराबर। सो नाउ हेलिकेज इज मूविंग टूवर्ड द फोक। जैसे हेलिकेज ऊपर जाएगा वैसे ये लीडिंग स्ट्रैंड इसको फॉलो करेगा। सो इजंट इट लीडिंग स्ट्रैंड विदाउट ब्रेक। जैसे हेलिकेज ऊपर के डीएनए को खोल रहा है वैसे ये ऊपर 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 जाता रहेगा, राइट। हेलिकेज को फॉलो करते करते डीएनए का लीडिंग स्ट्रैंड ऊपर की तरफ, फोर्क की तरफ, इट विल ग्रो टुवर्ड्स द फोक, बराबर। ओके, अब देखो ये डीएनए का टुकड़ा लैगिंग स्ट्रैंड का यहाँ से यहाँ तक बन के रुक गया, राइट। ओके, रुक गया। जस्ट 2 मिनट रुको। क्यों रुका अभी पता चलेगा, जस्ट होल्ड ऑन। ये डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ से आया, रुक गया, जस्ट होल्ड ऑन। अब हेलिकेज आगे गया तो ये डीएनए फिर से खुल गया। तो अब यहाँ पे नया आरएनए प्राइमर फिर से जुड़ेगा, राइट। और नया स्ट्रैंड, एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड फिर से बनते जाएंगे, राइट। ये बनते 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 यहाँ तक आए और ये अल्टीमेटली ये आरएनए प्राइमर को भी जुड़ जाएंगे। गेट इट। हेलिकेज ऊपर खोलते जा रहा है, यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका था, अब ये आगे का डीएनए खुल चुका, डीएनए आगे का खुल चुका तो यहाँ से फिर से आरएनए प्राइमर जुड़ गया और ये आरएनए प्राइमर खुद के 5' के एंड से, राइट, यहाँ इसका 5' एंड है तो खुद के 3' की एंड की तरफ ये फिर से ग्रो होगा। तो यहाँ पे फिर से आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, नया डीएनए का टुकड़ा फिर से बनेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा। क्यों? आगे का स्ट्रैंड ऑलरेडी बन चुका है। तो ये स्ट्रैंड भी यहाँ तक आके रुक गया। क्यों? आगे का डीएनए स्ट्रैंड ऑलरेडी बन चुका है और पेरेंट के साथ उसने कॉइल करना भी शुरू कर दिया है। I repeat, on the lagging strand, one small segment of DNA is synthesized in 5 to 3 direction with respect to itself away from the fork. Replication fork यहाँ पे है, यहाँ से इधर ये grow हो रहा है, right? Away from the fork. Right? As the DNA replication proceeds, helicase move on, right, and unzip the DNA. The template is again available. Right? On this lagging template, lagging strand जो बनाता है वो lagging template. On this lagging template, again one more RNA primer is added and new strand of DNA is synthesized by addition of deoxyribonucleotides in 5 to 3 direction. This synthesis will continue till it reach the strand with RNA primer which was just now synthesized. ये नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन वहां तक चलेगा जहां तक ये नया स्ट्रैंड बन चुका था, फिर ये 2 टुकड़े एक दूसरे को यहाँ पे जुड़ जाएंगे, राइट। तो डीएनए का पहले ये टुकड़ा बना, फिर ये टुकड़ा बना, फिर दूसरा बनेगा। जैसे जैसे हेलिकेज ऊपर जाएगा नए 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 टुकड़े बनते जाएंगे। देखो ये स्ट्रैंड जो लीडिंग स्ट्रैंड है, राइट, ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, राइट। ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है। सो लीडिंग स्ट्रैंड इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड. Leading strand is called continuous strand and the lagging strand is synthesized in fragments. एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा. It is called discontinuously synthesized strand. Leading strand is synthesized continuously. Lagging strand is synthesized discontinuously. Leading strand is synthesized in 5 to 3 direction towards the fork. Lagging strand is synthesized in 5 to 3 direction away from the fork in a discontinuous manner. टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है.
टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ रहा है, बराबर। अब ये एक टुकड़े को बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ये टुकड़े को क्या बोलेंगे? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब ओकाज़ाकी कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली साइंटिस्ट, right? So the lagging strand is synthesized by Okazaki fragment was first time studied by Okazaki. So this fragment of lagging strand is called Okazaki fragment, right? Okay, so see, leading strand is synthesized continuously, lagging strand is synthesized discontinuously, right? और जैसे सिंथेसिस चलेगा, ओके, वहां पे जहां पे कंप्लीट हो गया सिंथेसिस वहां पे कॉइलिंग होगा। सो कैन यू नोट द थिंग? सी, ये डीएनए यहाँ का है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, डीएनए फुल्ली कॉइल्ड है। ये इसके नीचे का डीएनए जहाँ पे लूजली कॉइल्ड डीएनए है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटैक्ट है। ये डीएनए ओपन अप हो चुका, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके। ये इधर का डीएनए यहाँ पे ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड पे नए डीएनए स्ट्रैंड बन चुके हैं, और ये वाला डीएनए जहां पे ओल्ड स्ट्रैंड और नए स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कॉइल होके नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन चुका है। सेम थिंग विल बी ट्रू हियर। यहां पे भी ये डीएनए ऐसे बनते जाएगा और कॉइल होते जाएगा, बनते जाएगा और कॉइल होते जाएगा। समझ रहे हो, राइट? सो सी, you consider this strand in which old strand is black, new strand is red. Here you consider old strand is black, blue strand is new. ये दोनों बेबी डीएनए डॉटर डीएनए बन रहे हैं। ये प्रोसेस आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा जाएगा, और अल्टीमेटली हमको ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डीएनए कैसे मिलेगा? देखो, ये इसका ब्लैक डीएनए, ब्लैक टेम्पलेट, ये इसका दूसरा ब्लैक डीएनए, ब्लैक टेम्पलेट, बराबर। ओके, अब वो जो लीडिंग टेम्पलेट था, सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड था, विच वॉज रेड इन कलर, राइट? ये इधर वाला जो था, दिस इज न्यू स्ट्रैंड, ब्लू इन कलर। अब ये दो डीएनए डॉटर डीएनए जिसमें ब्लैक वाला ओल्ड है, रेड ब्लू न्यू है, isn't it? 50% ओल्ड 50% न्यू। ये स्ट्रैंड में ब्लैक वाला 50% ओल्ड, ब्लू वाला न्यू। वो स्ट्रैंड में ब्लैक वाला 50% ओल्ड, राइट? देन रेड वाला न्यू, राइट? ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, isn't it? ये डीएनए इनिशियली मोनैड था, याद है? हमने ऐसे ड्रॉ किया था सेल डिवीजन में। ये मोनैड है, इसने एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करवाया और एस फेज में मोनैड का डायड हो गया। These two are called sister chromatids, exactly copy, exactly similar to each other. These two sister chromatids, which are exactly similar, right, are attached to each other by centromere, and this dyad formation will be there. This dyad formation will be there at the end of the DNA replication. बराबर, right? Okay, अब देखो, दो डीएनए स्ट्रैंड एग्जैक्टली सिमिलर कैसे है? दो डीएनए स्ट्रैंड एग्जैक्टली सिमिलर कैसे है? दैट वी नीड टू स्टडी, बराबर, वो देख लेंगे। तो यहाँ पे अब पूरा प्रोसेस धीरे 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 आगे जाएगा। ओके, तो हमको थोड़े डायरेक्शन के बारे में और डिटेल में सीखना है। ओके, ना डायरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, बराबर, उसकी एक्यूरेसी, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अब थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब आपके लिए गुड न्यूज है कि मैंने जितना सिखाया ये बहुत डिटेल है। एनसीईआरटी वालों ने ये बहुत कम कवर किया है, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों ने इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है। सो विल गो थ्रू बोथ द बुक्स। बेटर अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट? सो आई एम ऑन पेज नंबर
104 replication. While proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick has immediately proposed a scheme for replication of DNA. DNA का स्ट्रक्चर वैटसन एंड क्रिक ने दिया, उन्होंने झट से रेप्लिकेशन भी सिखा दिया. ओके, वो भी एक्सप्लेन कर दिया. Watson and Crick immediately proposed a scheme of replication of DNA to quote their original statement that is as follows. This has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से एग्जैक्ट कॉपी होता है. राइट, चलो वो देख ही लेते हैं. सी, ये दो डीएनए हैं, ये ब्लैक वाले. राइट, ये ब्लैक वाले के पास, ये फोर्क में पर्पसफुली ड्रॉ कर रही हूं, यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमीन, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे थाइमीन है तो यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन. Isn't it the total black? These two strands are complementary to each other. जब ये जुड़े थे तब वो कॉम्प्लीमेंट्री थे, लेकिन हेलिकेज ने इनको राइट सेपरेट कर दिया. आर यू गेटिंग मी? राइट, अब देखो यहाँ पे एक्यूरेसी ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से है. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब टेम्पलेट और नया स्ट्रैंड, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है. और टेम्पलेट मतलब पेरेंटल, द वन हु गाइड्स, उसके दो स्ट्रैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है. राइट, और नए जो स्ट्रैंड बन रहे हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है. तो एक प्रॉब्लम का आंसर भी यहाँ पे हमको मिलेगा और ये मेथड भी हमको अच्छे से समझेगा. लुक एट दिस, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सी, दिस इज पेरेंटल, पेरेंटल वन, जिसके लिए हमने कलर कोड यूज किया था ब्लैक. बराबर, तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है. बराबर, ये रेप्लिकेशन के लिए खुल गया. बराबर, अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड के हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पहले कंसीडर करते हैं. बराबर, सी, अगर यहाँ पे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अगर एडेनिन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री पे यहाँ पे होना चाहिए थाइमीन. बराबर, यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे होना चाहिए ग्वानिन, यहाँ पे अगर ग्वानिन है तो यहाँ पे होना चाहिए साइटोसिन. बराबर, थोड़ा डिस्टेंस एडजस्ट कर लेते हैं. बराबर, अगर यहाँ पे है थाइमीन तो यहाँ पे होना चाहिए एडेनिन. बराबर, तो ये दो स्ट्रैंड खुलने से पहले इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री थे. अब हेलिकेज ने इनको खोल दिया, तो सिंगल स्ट्रैंड पे हमको ये न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहे हैं. बराबर, ओके. आगे के अगर न्यूक्लियोटाइड पेयर देखते हैं, समझ लो यहाँ पे जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो टी. I'm just writing down the complementary base pairing present in black, that is parental double-stranded DNA. Now the fork is open and new strand is synthesized again by following rule of complementarity. बराबर, so see, A किसके साथ पेयर करेगा? T के साथ. G will pair with C, T will pair with A. तो ये बन गया नया DNA का स्ट्रैंड. Isn't it? बराबर, इसकी भाषा में बोला जाए, दिस इज अ लीडिंग स्ट्रैंड ग्रोइंग टुवर्ड्स द फोक. बराबर, इधर का जो है स्ट्रैंड, जिसके लिए हमने ब्लू कलर यूज किया था, यहाँ पे भी देखो टी के साथ ए जुड़ेगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी और ए के साथ टी. तो ये बना दूसरा डीएनए स्ट्रैंड जो है लैगिंग स्ट्रैंड ग्रोइंग इन 5 to 3 डायरेक्शन अवे फ्रॉम द फोक. बराबर, तो ये प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट होगा, तो हमको किस प्रकार के स्ट्रैंड मिलेंगे? देखो, ये ब्लैक वाला पेरेंटल स्ट्रैंड, ब्लैक पे सीक्वेंस क्या है? देखो यहाँ पे ए टी, देन सी जी, देन देखो मैं गलती कर रही हूं क्या, जी सी, राइट, देन इट विल बी ये टी ए, राइट, ओके. देन अगर आगे का देखते हैं,
तो ये है टी के साथ, टी के बाद है यहाँ पे जी, तो यहाँ पे रहेगा सी, यहाँ पे है सी, तो यहाँ पे रहेगा जी, और यहाँ पे है ए, तो यहाँ पे है टी। ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, बराबर। अब इस पे ये स्ट्रैंड बना रेड वाला, रेड पे कॉम्प्लीमेंट्री कैसी है, टी जी सी ए सी जी टी। ये स्ट्रैंड कैसे बनेगा, ब्लू कोड यूज करना है मैंने, राइट। लैगिंग डॉटर स्ट्रैंड वी हैव यूज द कलर कोड ब्लू, बराबर। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगी, ए सी जी टी जी सी ए। पेरेंटल डीएनए डिवाइड होके हमको इस प्रकार के दो डीएनए देगा, बराबर। ये डायग्राम हम सीख चुके हैं, बराबर। अब देखो कंपेयर करते हैं कि यार ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सिमिलर है क्या, और क्या ये पेरेंट से भी एग्जैक्टली सिमिलर है। तो सी व्हाट वाज द फर्स्ट पेयर ऑफ टेम्पलेट, टेम्पलेट का पहला पेयर क्या था, एटी, इसका भी पहले पेयर है एटी, इधर भी है एटी। सेकंड पेयर है सी जी, राइट, सेकंड पेयर देखो सी जी, तो यहाँ पे है सी जी, यहाँ पे है सी जी। इसका थर्ड पेयर है जी सी, तो इधर भी है जी सी, go on. So, because of complementary base pairing nature, the parental DNA when separate and produce two daughter DNA, the two daughter DNA are exactly similar to each other, and these two daughter DNA are exact copy, replica of the parental DNA. Understood, right? So this is what is complementarity rule is making the process of DNA replication 100% accurate, right? That's why we use the word replica. Okay, तो कौन से शब्द यूज किए हमने, DNA replication is DNA catalyting DNA, that property is autocatalytic, right? The one who guides is called template, right? Then the new DNA nucleotides are added, new DNA polymer is synthesized by the enzyme, DNA polymerase. DNA replication always starts with addition of RNA primer. DNA polymerase always works in which direction? 5:3 direction with respect to itself. Leading strand synthesis starts first or later? Leading strand synthesis starts first. Lagging strand is starting late, that's why it is called lagging strand. Leading strand synthesis occurs in which direction? 5:3. Leading strand synthesis occurs in which direction? 5:3. Towards the fork, away from the fork? Towards the fork. Which strand is following the direction of helicase? Leading strand is following the direction of helicase. Right? Okay. Which strand is continuously grown and not in fragments? Leading strand is continuously grown in 5:3 direction towards the fork continuously. That's why it is called leading strand, continuous strand. Right? Okay. Which strand synthesis starts bit later? Lagging strand synthesis starts bit later. Why? Because DNA polymerase can work only in 5:3 direction with respect to itself. राइट, ओके। लैगिंग स्ट्रैंड का ये एंड है 5', तो नए स्ट्रैंड का होगा ये 3'। तो 3' पे प्रोसेस शुरू करके 5' की तरफ चलना डीएनए पॉलीमरेज को नहीं आता, तो इट विल वेट टिल दिस स्ट्रैंड ओपन अप फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ। ये कंसिडरेबल लेंथ ओपन हो गया तो 5' पे आरएनए प्राइमर ऐड होगा, राइट, फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेसी, and then DNA polymerase will go on adding nucleotide in 5:3 direction, बराबर। तो ये राइबोस शुगर आपको डायरेक्शन देगा, आरएनए प्राइमर के 3' एंड को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, so this will be a phosphodiester bond formation which is initiated। ये आरएनए प्राइमर पहले जुड़ा था ना, तो आरएनए प्राइमर ये नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इनिशिएट करेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड एट 3' एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर।
or 3' end of the old nucleotide and it get attached to 5' end of new nucleotide. Right? Okay. So lagging strand synthesized in 5 to 3 direction away from the fork. यहाँ पे आके process रुक गई. Why? The next strand is already synthesized and coiled. Okay. Helicase. Which enzyme goes on uncoiling DNA? Helicase. As helicase moves further, again DNA replication starts at one more point on lagging strand by adding Okazaki fragment. Right? So this single fragment is called Okazaki. Why? It was discovered by Okazaki scientist ने. So यहाँ पे मैंने कितने Okazaki fragment ड्रॉ किए हैं? 2. मैंने कितने RNA प्राइमर ड्रॉ किए हैं? कलर कोड ध्यान में दो. मैंने रेड कलर का RNA प्राइमर ड्रॉ किया है. How many Okazaki fragment you can see? 1 and 2. How many RNA primer you can see? It's 1. ये Okazaki fragment का एक RNA primer, ये Okazaki fragment का दूसरा RNA primer और इसका ये तीसरा RNA primer. बराबर? So we can say number of Okazaki fragment plus 1 will be equal to number of RNA primer present at one replication fork. Right? चलो लिख लो फॉर्मूला. इसके पहले के भी फॉर्मूले हमने प्रॉब्लम लिखते वक्त सोचने का मैंने बोला था. राइट? तो हम एक पेज करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्मूला. राइट? यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो. नंबर ऑफ आरएनए प्राइमर ऑन वन रेप्लिकेशन फोर्क. ये एक रेप्लिकेशन फोर्क है. इस पे कितने आरएनए प्राइमर रहेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट का नंबर +1. जितने ओकाजाकी फ्रैगमेंट +1. गॉट इट? राइट? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. 50% ओल्ड, ये देखो ब्लैक, 50% न्यू. Right? So it is semi-conservative and monad will be converted to dyad. ये diagram समझ रहे हो ना? Right? Monad will be converted to dyad because of DNA replication. Black is old, red, blue are new, 50% old, 50% new is conserved. बराबर? Right? चलो, come to next line. एनसीईआरटी में अब इसके आगे मिसेल्सन एंड स्टाल का सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है. राइट? वो अभी हमने नहीं देखा. सो वी आर गोइंग ऑन पेज नंबर 106. कम टू पेज नंबर 106. सी मशीनरी एंड द एंजाइम. मशीनरी एंड द एंजाइम इन लिविंग सेल सच एज ई कोलाई. E. coli is a bacteria. So नोट करना, E. coli के डीएनए रेप्लिकेशन में जो जो पॉइंट दिए हैं वो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है. एंड दिस विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट, दिस वन विच वी हैव डिस्कस्ड इज अ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. सो हम अभी इसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं. प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में अंतर क्या है? सी, इन लिविंग सेल सच एज E. coli the process of replication requires a set of catalyst enzymes. The main enzyme is referred as DNA dependent DNA polymerase. ये डीएनए स्ट्रैंड को सेंस करके नया डीएनए पॉलीमर बनाने वाला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. Since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxyribonucleotides. deoxyribonucleotides को अलाइन करने वाला किस पे डिपेंडेंट है एंजाइम? डीएनए जो टेम्पलेट, जो डीएनए रेप्लिकेशन गाइड करता है. सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ओके, एंजाइम का नाम हमेशा उसका काम आपको समझाएगा. These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time. See, human cell की cell cycle, can you tell me the duration of human cell cycle generation time? 24 hours. Very good. जिनको आया उनको, जो नहीं आया बुद्धू. सेल डिवीजन में हमने ये सीखा था. राइट? सो हाई टू इंटेलिजेंट पीपल, हाई टू बुद्धू पीपल.
बी विथ मी, थोड़ा याद करो, पीछे वाला याद आना चाहिए, राइट? सो जनरेशन टाइप ऑफ सेल, ह्यूमन सेल इज 24 आवर्स. जस्ट इमेजिन 24 आवर्स में 2 मीटर लंबे डीएनए का रेप्लिकेशन करवा के प्रोमेटा एनाटेलोसाइटोकाइनेसिस भी करवाना है. तो ये डीएनए रेप्लिकेट करने का एंजाइम का स्पीड क्या होगा? इट इज अराउंड एडिंग 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड. Okay, so it is tremendously fast working enzyme, right? E. coli has only 4.5 multiplied by 10 to the power 6 base pair. Compare it with human whose diploid content is 6.6 multiplied by 10 to the power 9 base pair. Complete the process of replication within 38 minutes. बराबर? तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन 38 मिनट्स में होता है. That means that the average rate of polymerization has approximately 22,000 base pair per second. बराबर? तो एवरेज स्पीड कंसीडर करेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट. अदरवाइज यूकैरियोट में ये स्पीड ज्यादा होती है. आप यही नंबर ध्यान में रखेंगे, 2000 base pair per second. Not only do these polymerization have the fast, but they also have the catalyst, the reaction with high degree of accuracy. It's not only speed मैटर करता है, ये accuracy भी मैटर करता है. कोई भी न्यूक्लियोटाइड कौन सी भी जगह नहीं ऐड होगा. So that accuracy is also very important. Any mistake during replication would result into mutation. समझ लो ये A को कॉम्प्लीमेंट्री T है, गलती से यहाँ पे साइटोकाइनिन ऐड हो गया, ग्वानिन ऐड हो गया, तो डीएनए में म्यूटेशन होगा, राइट? डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन है वो बदल जाएगी. कैसे? विल कम टू नो इन नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस पार्ट, राइट? म्यूटेशन इज सडन एब्रप्ट हेरिटेबल चेंज. ये न्यूक्लियोटाइड बदल गया, ऑब्वियसली एब्रप्टली डीएनए का इंफॉर्मेशन बदल जाएगा. कैसे? वो देखते हैं. एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन. फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. देखो एक्टिवेशन का फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्टिवेशन. फॉर एक्टिवेशन ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड 2 energy rich bonds, right, are consumed. So activation is really requiring the huge amount of energy. Deoxyribonucleotide triphosphate serve dual purpose. The addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reaction. याद करो मैंने बोला था guanosine monophosphate inactivated nucleotide. ATP से रिएक्ट करा, guanosine diphosphate triphosphate, ये जाके वहां पे ऐड होगा. दोनों फॉस्फेट निकल गए तो एनर्जी रिलीज हुई. ये एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगी. फिर एक बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बनेगा, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, राइट? तो ये प्रोसेस में एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एनर्जी भी सप्लाई करता है, एज वेल एज वो रॉ मटेरियल भी है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. The 2-terminal phosphate in the deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphatase as in case of ATP. Adenosine monophosphate doesn't have energy. Adenosine diphosphate, second bond is energy rich. And adenosine diphosphate to adenosine triphosphate is again an energy rich bond. ATP का स्ट्रक्चर हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में सीखा था, right? So ATP has 2 energy rich bonds. They are broken. 2IP कौन सा भी आया, ATP यहाँ पे आया, GTP यहाँ पे आया, तो 2 IP निकल जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी AMP को न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में यूज होगी. सो इट इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. In addition to DNA-dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with a high degree of accuracy. For long DNA molecules, since 2 strands of DNA cannot be separated in its entire length, पूरा DNA पहले खोल दिया और फिर रेप्लिकेशन हो रहा है, ऐसे नहीं होगा. साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रहा है, देख रहे थे ना वहां पे. अभी यहाँ पे डीएनए ने कुछ नहीं काम किया, यहाँ पे राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे नया डीएनए बन रहा है, यहाँ पे बन के कॉइल हो गया. सो द प्रोसेस इज साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन. पूरा पहले खोल दिया, फिर एक एक न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट किया, फिर ऐड करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं. इसलिए लॉन्ग प्रोसेस, डीएनए इज वेरी लॉन्ग.
So has many origin. At many origin, the process starts, and simultaneously uncoiling, breaking of hydrogen bond, synthesis of new strand, right, and coiling of old and new strand simultaneously occurs, right? So it is a simultaneous process. For long DNA molecules, since two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, इतने बड़े डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी. देखो एक एक छोटी छोटी बात है. ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, राइट? यू नो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक. सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक. हेलिकेज एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते आगे जाता है. सो हेलिकेज को एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती. लेकिन इतने सारे हजारों हाइड्रोजन बॉन्ड वी हैव कैलकुलेटेड कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे. उतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एट ए टाइम तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी. दैट इज नॉट अवेलेबल. सो गेट इट ड्यूअल पर्पज. Many hydrogen bonds make the DNA stable, but because helicase is breaking one hydrogen bond at a time, because the helicase is breaking one hydrogen bond at a time, breaking is possible with little energy, but more number of hydrogen bond gives stability. So hydrogen bond की वजह से many number की वजह से stability भी है, और एक को तोड़ना आसान है, इसलिए DNA replication less energy at a time, less energy consume करके initiate भी होगा, right? Okay, so see, so many minute details are there in NCERT. For long DNA molecules, since two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occurs within the small opening of a DNA helix referred as replication fork. Actual DNA replication का process ये fork पे ही हो रहा है, right? बाकी की जगह simultaneously दूसरे activities चल रहे हैं. The DNA dependent DNA polymerase enzyme only works in direction 5:3. This creates some additional complication at replication fork. ये 5:3 काम करता है, इसलिए एक स्ट्रैंड लीडिंग है और दूसरा लैगिंग है. अदरवाइज दोनों साथ में चलते थे, ये भी ये डायरेक्शन में बनता था, ये भी ये डायरेक्शन में. वो स्ट्रैंड पे 5:3 काम चलता था, ये स्ट्रैंड पे 3:5 काम चलता था. लेकिन वो नहीं हो रहा है. Isn't it additional complication? Because DNA polymerase work only in 5:3 direction. The replication is continuous, while on the other, the template which has polarity 5:3. 5:3 polarity strand पे DNA replication late शुरू होगा. 3:5 polarity वाले strand पे DNA replication immediate शुरू होगा. Consequently, on one strand, the template with polarity 3:5, the replication is continuous, while on other, the template with polarity 5:3, it is discontinuous. The discontinuously synthesized fragments are later joined by enzyme DNA ligase. बराबर. So ये जो है, ये एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये दूसरा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, राइट? ये कैसे जुड़ेंगे, राइट? These two will join with each other by the enzyme. देखो यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर. और आगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी बनेगा. तो ये स्ट्रैंड पे पूरे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट ही बनने वाले हैं. तो जितने भी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनेंगे, 1, 2, ऊपर बनेगा वो 3. So all these Okazaki fragments are connected to each other by ligase, right? So ligase is genetic glue. The DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place, right? DNA polymerase अकेला DNA replication initiate नहीं करेगा. उसको टेम्पलेट चाहिए, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए, बराबर, राइट? Also, the replication does not initiate randomly at any place, right? हमने देखो ORI लिखा था, origin. Eukaryotic DNA has specific origin. What is that? That is particular sequence of nucleotide which will be sensed by DNA polymerase. It will come and attach. Endonuclease will come and attach and break the phosphodiester bond, right? So that is specific origin at which the DNA replication starts. Also, the replication does not initiate randomly at any place. There is definite region in E. coli DNA where replication originates. Such regions are termed as origin of replication. It is because of the requirement of origin
of replication that a piece of DNA is needed to be propagated during recombinant DNA procedure requires a vector. This vector provides the origin of replication. इसको ब्रैकेट दे दो और वहां पे लिखो बायोटेक. ये पॉइंट हम बायोटेक में सीखेंगे. कुछ दिमाग मत लगाओ. We'll study in biotech. Come to the next part. Further, not every detail of replication is understood well. See, we have electron microscope, we have advanced techniques, right? Still, the process of DNA replication is not well understood by us. Right? In eukaryotes, the replication of DNA takes place in S phase of cell cycle. The replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinated. In each cell cycle, DNA replication occurs once. It is under high control and coordination. Right? इसमें कभी mismatch नहीं होगा. A failure in cell division after DNA replication result into polyploidy. Right? Cell है, cell के अंदर DNA replicate हो गया, मोनाड के डायड बन गए, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया और डॉटर क्रोमोसोम भी बन गए. सिस्टर क्रोमैटिड्स कन्वर्टेड टू डॉटर क्रोमोसोम. Isn't it? क्रोमोसोम का नंबर बदलते जा रहा है, बट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नॉट हैपनिंग. साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रहा है. तो वो कंडीशन में विद इन अ सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गोज ऑन मल्टीप्लाइंग. राइट? इट इज लीडिंग टू पॉलीप्लॉइडी. इससे क्या होगा? सेल के अंदर ज्यादा सेट क्रोमोसोम के बनेंगे. क्रोमोसोम का एक सेट हैप्लॉइड, क्रोमोसोम के 2 सेट डिप्लॉइड, मोर देन 2 पॉलीप्लॉइड. राइट? सो डीएनए रेप्लिकेशन होता रहा लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुआ तो हमको पॉलीप्लॉइडी मिलेगी. यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस. राइट? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं, राइट, वो हायर क्लासेस में आप डिटेल में सीखेंगे. वन मोर थिंग, अभी जैसे हम जीन का एक्सप्रेशन सीखेंगे, जीन काम कैसे करता है, उसका रिलेशन क्या है, वो कंट्रोल कैसे होते हैं. सो ऑटोमेटिकली यू कम टू नो द फंक्शनिंग ऑफ डीएनए. राइट? सो दिस इज व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन एनसीईआरटी. In next lecture, we'll read state board because it is nicely represented in state board also.